32 जड़ी बूटी युक्त कपाल झर्न रोक्ने, नयाँ कपाल उमार्ने, कपाल कालो बनाउने श्रीकेश जड़ी बूटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। Hi everyone, my name is Neha Pardeshi and I have been playing for India for the past 14 years. I've captained the Indian women's team. I am here today with Mr. Shiv Khera. Thank you for being here. He is an motivator, he is an achiever, he's an author who has also trained multiple international personalities and he has written a book, You Can Win. So thank you sir so much for being here with us, and I hope this conversation just goes beyond what we can imagine. So can you just tell us, Neha. most welcome sir, can you tell us about how you started it all? I mean, has your journey begun to be a motivational speaker, a motivational trainer, and an author? Neha, I've been interviewed so many times, and this Yeah. is one question I everybody's know. asked me again and again. So it's sure. become so stereotyped. But let me quickly cut it short and come back. Yeah. I came from a business family. We had coal mines. They got nationalized. Yeah. We came on the street, and I tried my hand on 3 businesses with no money, and I failed in all 3. Finally, I left India, November 13, 1975. Since I'm not that educated, I started life with a bucket in my hand, washing cars door to door for about a year and a half Okay. in Toronto. Wow. And totally by accident, I got into selling life insurance. And within 3 months, my manager called to fire me for non-performance. Oh. But bottom line was, I attended a program by Dr. Norman Vincent Peale, the man who wrote the book Power of Positive Thinking. And that day, that was one of the turning points in my life. He looked at everybody, said, it appears nobody has a problem here. You people are so cool, calm, comfortable. He asked, does anybody have a problem? Now, who doesn't have a problem? So everybody raised their hand. Then he said, how many people would like to get rid of their problem? Again, everybody raised their hand. And then Dr. Peale said, while I was coming here, I came across a place where I saw some people lying down, all stretched out, comfortable, totally relaxed. They had no problem whatsoever. Yeah. How many people would like to know where that place is? Again, everybody raised their hand. Then Dr. Peale said, 2 blocks away from here, there is a cemetery. There are people lying there, all stretched out, comfortable. They have no problem whatsoever. Then he asked, how many people would like to get rid of their problems? Nobody raised their hand, and everybody put their hand in their pocket. Then Dr. Peale said that day, problem is a sign of life. So long as we are alive, we shall have problems. Yeah. The day we don't have problems, we'd be dead. True. And then that day he gave a prayer, which is called the Serenity Prayer. Okay. And he said, I'll say it once in English and maybe once in Hindi, God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. हिंदी में कहते हैं इसको, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि उनमें फर्क बता सकूं, एंड उसको बदल दूं, और उन इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता. So if you look at this little prayer, it is just gist of life. True. God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Now the question is, can we change everything in this world to suit ourselves? Answer is no. Can we mold and manipulate things to suit ourselves again? Answer is no. There are many things beyond, such as, I didn't choose my parents, neither did you. I didn't decide where it's going to be born, neither did you. If this is my height and the color of my skin, there's nothing I can do about it. True. And granted, sometimes people are born deformed. And sometimes bad things happen to good people for no fault of their own. What wrong did they do? Who knows? True. So it says, what I cannot change, let me accept it graciously, not grudgingly. That's absolutely amazing. Because many times in life, people keep fighting the things they just cannot change. And they bring stress into their lives, they become paralyzed, and they become unproductive. So it says,
what I cannot change, let me accept it graciously, not grudgingly. Yeah. And if I can change, then give me the courage to do it. And wisdom to know the difference, what I can and what I you can't. cannot. Now, when I wrote my book, You Can Achieve More, I took this thought 2 steps forward. And I wrote in that life is full of choices and life is full of compromises. Seems like a contradiction, but not really. How is life full of choices? See, if I ill-treat you, I've chosen to be ill-treated, haven't I? If I treat you with discourtesy, I've chosen to be treated with discourtesy, haven't I? Yes, you have. If I light up a cigarette, I've chosen to invite cancer, haven't I? And if I drink and drive, I've chosen to invite an accident, haven't I? And if I exercise every day, I've chosen to invite good health, haven't I? Yes. And if I eat too much every day, I've chosen to be obese, haven't I? And if I tell lies, hear this, if I tell lies, I've chosen to lose my credibility, haven't I? See, life is full of choices. Absolutely. Now, very important thing is that we are all free to the point of choice. But after we make our choices, the choice controls the chooser. We have no more choice. Absolutely. Yeah? Yes. Our freedom stops. Now, the important thing is, how is life full of compromises? As somebody said in life, we cannot choose the cards that are dealt to us. What we can choose is how we play the game. As somebody said, sometimes nature gives us a lemon, the choice is ours. Whether to Do we make a cry or do we make lemonade? Yes. That's our choice. True. Now, Neha, many times, especially the press people ask me that, Mr. Khera, people who are successful, don't they make mistakes? And people who fail, don't they do positive things in life? My answer is that people who are successful, they do make mistakes. But remember, making a mistake once in a while does not bring failure. True. Repeating the same mistake again and again is what Yeah. brings failure. Yeah. When it becomes a habit is when it राइट becomes. जब मैंने अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर तो यही इसी सोच को लेके मैं 2 कदम आगे बढ़ गया तो मैंने एक किताब में लिखा है जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है जिंदगी एक फैसला कैसे है साहब मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए Right. Yes. तो जिंदगी एक फैसला है सब बहुत जरूरी बात यह है हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आजादी खत्म हो जाती है फैसला हम पे काबू पा लेता है और जिंदगी एक समझौता कैसे है किसी ने बहुत अच्छी बात कही है जिंदगी में ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते लेकिन खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं Absolutely. अब कई बारी लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते इसका जवाब ये है जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं साहब लेकिन मैंने एक चीज सीखी जिंदगी में कभी कभार गलती करने से कोई इंसान असफल नहीं हुआ अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही आदमी असफल हुआ है और कभी कभार अच्छे काम करने से इंसान सफल नहीं हुआ अपने अच्छाइयों को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल हुआ है तो जिंदगी है क्या सफलता और फेलियर किसको कहते हैं series of positive decisions in life is called success Yes. and series of negative decisions in life is called failure बहुत अच्छी बात है success is a habit and so is failure Absolutely. So absolutely. मैं completely आपसे agree करती हूँ. लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करना हाँ जी, चाहूंगा please. तो डॉक्टर पील का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैं अपने मैनेजर के पास गया who was about to fire me तो मैंने कहा भैया मुझे एक मौका और दो डोंट फायर मी क्योंकि अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं मालूम नहीं कहाँ जाऊंगा मुझे एक ही जगह मालूम है गाड़ियां साफ करना जो मैं साफ करता था आई डोंट वांट टू डू इट एनी मोर आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट तो मैंने उसको कहा कि आई मेक वन कमिटमेंट टू यू आई वोंट लेट यू डाउन बिकॉज ऑफ माई एफर्ट लेकिन आप कागज विड्रॉ कर लीजिए आप साहब उस दिन उसने कहा मेरे को कि शिव ये छोटी आपकी कमिटमेंट नहीं है बहुत बड़ी कमिटमेंट है कहता है मैं तब ये कागज विड्रॉ करूंगा
अगर तुम कमिटमेंट मेरे साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ करोगे तब मैं कागज विड्रॉ करूंगा। तो साहब उस दिन मैंने एक कमिटमेंट की अपने साथ, और वो मेरी जिंदगी में एक मोड़ था, और हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई मोड़ आता है। उसने कागज विड्रॉ कर लिए, और उस साल में जाके आई सोल्ड ओवर $1 million. Wow. Next year I sold close to $3 million. Year after $5 million. Moved on to the US. I got into 3 businesses. And मैंने 1984 में एक कंपनी खरीदी कैलिफोर्निया की, उनका न्यू जर्सी ऑपरेशन शुरू किया with no clients, और मैंने अपनी कंपनी बेची with close to 500 clients for a decent sum. Now मैं अपनी जिंदगी आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? इस वजह से मैं सारी जिंदगी फेल होता चला गया और सारी दुनिया को दोषी ठहराता चला गया। ये नहीं सोचा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या मैं खुद ही था। आई वॉज माई ओन बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोई बदलाव बाहर नहीं आया, मेरी सोच बदली, जिंदगी में मेरी दिशा बदल गई। दैट वॉज वन। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे सभी दर्शकों से, बहुत बारी जिंदगी में क्या हम लोग अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही नहीं बन जाते क्या? दैट इज वन क्वेश्चन। और दूसरा, मैंने एक चीज सीखी कि मेरी अपॉइंटमेंट्स 1 हफ्ता इन एडवांस होती थी। अगर आपकी अपॉइंटमेंट्स 1 हफ्ता इन एडवांस नहीं होती हैं, इसका मतलब ये है यू आर अनएम्प्लॉयड विद अ जॉब। कई लोग सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज क्या करूं। अरे आज क्या करूं? आपने हफ्ता पहले प्लान नहीं किया। इज दिस व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट? और तीसरी चीज जो सीखी मैंने नेहा, वो ये है कि मैं इंश्योरेंस बेचता था। इंश्योरेंस सेलिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट सेल्स इन द वर्ल्ड, बाय द वे। Absolutely. वो इट इज नॉट लाइक सेलिंग अ कप और वाटर और अ हाउस और अ कार। इट्स इजी, क्योंकि बाकी सब चीजें यू कैन टच एंड फील एंड टच एंड फील। इंश्योरेंस में तो खाली आदमी कहता है साहब आप चले जाओगे, आपके परिवार को मिल जाएगा। देयर इज नथिंग टू सी। तो मैं वहां पे देख रहा था, आई वाज ऑन अ कमीशन। मैं अगर नहीं बेचता था तो मुझे पैसे नहीं मिलते थे, और पैसे थे नहीं हमारे पास। लेकिन मैंने कंपनी में देखा कि कुछ लोगों को तनख्वाह मिलती थी और काम नहीं करते थे। अच्छा। वहां मैंने सीखा पैसा बनाने में और कमाने में बहुत फर्क है। पैसा बनाना चोरी है, पैसा कमाना ईमानदारी है। It's also an art, I believe. And most important thing is making money is criminal, earning money is spiritual. Spiritual कैसे बनती है चीज? What makes it spiritual? When you put your energy and ethics behind it. दो चीज। When you put your energy and ethics behind it, it becomes spiritual. और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते हैं। That is a sad part. और आप देखें कई स्टडीज हुई अमेरिका में, ग्लोबल स्टडीज which says 63% ऑफ लोग जो काम करने को जाते हैं they are disengaged, मतलब अपना काम नहीं करते साहब। एंड एडिशनल 24% आर एक्टिवली डिसएंगेज। इसका मतलब क्या है? दूसरों को भी काम नहीं करने देते। सही है। सिर्फ 13% लोग जो काम पे जाते हैं ईमानदारी से काम करते हैं, ओनली 13%। And I believe those are the ones who are progressing in life. That's right. And tell me, is this not an integrity issue? Of course it is. और आज की तारीख में खास तौर पे सोशल मीडिया के तरीके से यही सर्वे आगे उसने किया, और उसमें बताया उन्होंने कि तकरीबन जो लोग काम पे जाते हैं रोजाना, they spend 2 to 3 hours per day, every day on the personal social media. साहब इसी के पैसे मिलते हैं हमको क्या? इसी की तनख्वाह मिलती है। I think social media एक तरीके का distraction बन गया है आज के, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। और दुख की बात यह है 2-3 घंटे रोज उसी में लगा देते हैं, और काम के टाइम के ऊपर सवाल ये है क्या इसके पैसे मिलते हैं? मान लीजिए कोई आपका एक बटुआ चुरा लेता है, आप क्या कहते हो उसको? चोर। जब हम सब ऐसे काम करते हैं तो हम क्या है? हम भी चोर हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। दैट इज इट। That's So absolutely we right. need to get our foundation Yeah. basics right. Yeah. So what? तो basically हमारा journey, आपका journey और मेरा journey ज़्यादा different है नहीं. It's all about failure and then how we got out of that and what we've learned through the failure, right? I started playing sport at the age of 3 और तभी मेरे, I mean,
I don't know whether you would believe it or not, but at that time मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को इंडिया के लिए खेलना है. That was my only aim. And as a, I don't, 3-4-year-old, मेरे को, I don't know, I have not seen any in this generation where people are only thinking about India, you know, I want my name on the India jersey. Okay. And that was the only thing I used to pray also about. Right. So, जब मैंने start किया, I tried my luck in multiple sports. I started with athletics, जिसमें मैंने national तक खेला. But उसके बाद playing for the international, at the international level, it was a struggle. Right. Then I tried my hand at handball. Again, I played till the national level, but international was a, और इसमें भी journey इस तरीके से था जिसमें मैं multiple years attempt करती थी select होने के लिए even for the state team, and I used to get rejected. And I used to come back crying. Obviously, as a, you know, इतना आप effort डालते हो, but आपको उसके return में कुछ मिलता नहीं है. So I used to be like, क्यों हो रहा है ये? You know, why am I not getting selected? Even though I used to feel कि यार मैं सबसे अच्छा perform कर रही हूँ, but मैं select नहीं हो रही. So I used to come back and work harder than what I had before. तो मेरा schedule roughly ऐसे होता था कि मैं सुबह 7 to 8:45 generally हमारा school start होता था. तो I used to go 1-1.5 घंटा पहले practice करना, फिर school के बाद practice करना और फिर evening में practice करना. So that was, और बीच में school का काम. And I was not I was one of a very good student academically also, because हमारे दिमाग में जैसे ये डाला जाता है कि अगर आपको bread and butter कमाना है तो आपको पढ़ाई में भी अच्छा होना पड़ेगा. बिल्कुल. Right? Sports is not going to give you money, or it's not going to earn you bread and butter. At least in my, since when I started. Sure. So this was all about basically balancing my passion and balancing my necessities. Right? तो आपका आज के generation के लिए क्या क्या ideology होगा कि उन्हें as a sports, अगर उन्हें sports लेना है तो वो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना चाहिए या किस तरीके से स्पोर्ट्स में वो करियर बना सकते हैं, और हाउ शुड इट बी अ प्रोफेशन दैट दे शुड परस्यू, बिकॉज नाउ वी सीन बहुत सारे सेलिब्रिटी, लाइक वी सीन सानिया मिर्जा, वी सीन पीवी सिंधु, इनका हमने अचीवमेंट्स देखा है बट इनका स्ट्रगल नहीं देखा. राइट. और same with, I feel now that I am being able to talk to you, it's come after so many years of say being an introvert or being not having the courage to speak out to people, and I feel कि ये मेरे को rugby से मिला है, because अभी I have played 14 years for India, which I have been able to achieve after 15 years of failure. तो लोग 14 years देखते बट वो पीछे के साल नहीं देखते. Similar with you now that you are being able to give everybody the motivational aspect of your life, but actually वो struggle को जानना और उसे महसूस करना, I think that is a very big factor that people have to take into consideration. So as a person, what would your thoughts be about taking sports as a career? उन्होंने कैसे लेना चाहिए भी या नहीं, और किस तरीके से उन्होंने पॉजिटिव रहना चाहिए? That I would like to ask you. चलिए नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि देश को आपके ऊपर बहुत गर्व है. Thank you. You are representing India. Country is very proud of you. Thank you. And जो आपने अभी बात कही है कि आपने इतनी स्ट्रगल की, मेहनत की, and you used the word after failing for so many years and you come to this level. देखिए, एक होता है, एक बेंचमार्क होता है, हर एक जिंदगी में एक बेंचमार्क होता है. एंड यू सेड व्हेन आई डिडंट मीट द बेंचमार्क और आई मेट द बेंचमार्क बट आई वाज नॉट सिलेक्टेड और व्हाटएवर हैपेंड, रिगार्डलेस, बट आपकी मेहनत और बढ़ती गई. देखिए, जिंदगी में क्या होता है, जो इंसान सफल होना चाहता है ना, एक बेंचमार्क होता है. जब वो यू डोंट मीट द बेंचमार्क, विनर्स क्या करते हैं, they increase the effort. Losers क्या करते हैं, benchmark को गिरा देते हैं. That's right. Yes. You see, losers lower the benchmark, winners increase the level of effort. Yes. That is the difference between winners and losers.
आपने 14 साल पुरानी बात कही कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं माइकल फेल्प्स का। सी माइकल फेल्प्स क्रिएटेड हिस्ट्री 2008 में एट बीजिंग, लेकिन ज्यादा तक लोगों को मालूम नहीं है कि 2 साल पहले बिफोर द ओलंपिक्स माइकल फेल्प्स फ्रैक्चर्ड हिज हैंड, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि भैया तुम पानी के अंदर नहीं जा सकते हो, और तुम्हारा हाथ अगर जुड़ भी जाए तो सवाल ये है क्या उसके अंदर वो ताकत दोबारा आ सकती है। तुम ओलंपिक में कंपीट कर रहे हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो। माइकल फेल्प्स इसकी तैयारी कर रहा था 10 साल से, मे बी इवन मोर। वो अपना जिंदगी का सपना टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। Exactly. तो उसने डॉक्टर को बोला कि मैं पानी में जाऊंगा, मैं हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपना पांव इस्तेमाल करूंगा। He continued using his legs. 2 साल के बाद बीजिंग में he created history, नया इतिहास बना दिया इसने। और जब 8 मेडल जीते इसने, तो वहां पर ये मेरा वर्जन है, किसी ने उससे पूछा कि माइकल फेल्प्स आप 8 गोल्ड मेडल जीत गए, मस्ट बी योर लकी डे, आपकी किस्मत अच्छी है, मस्ट बी योर लकी डे। तो माइकल फेल्प्स को अच्छा नहीं लगा, कहता इधर आओ, किस्मत ने मुझे क्या दिला दिया है। कहता है कि पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है, एंड तुम्हारा गणित अच्छा है, इसका मतलब होता है 2,500 घंटे हर साल, और गणित और अच्छा है तो इसका मतलब होता है 8 घंटे every day, no Sunday. कहता है तू जाके 8 घंटे रोज अगले 4 साल के लिए पानी में बैठ जा, तेरा जिस्म सुकड़ जाएगा। Then you can call it a lucky day. तो उससे पूछा क्या मुझे किस्मत ने जिला दिया है? कहता है किस्मत बनी नहीं ऐसे किसी को घर में ऐसे चीज हाथ में पकड़ाने के लिए, इट हैज नेवर हैपेंड लाइफ। कहता है एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। Like Usain Bolt, yes. Athletes practice 15 years for 15 seconds of performance. Go ask them, did they get lucky? Luck is not designed to deliver these things in life. तो ऐसा है कि आपको देख के मेरे को याद आया कि बहुत साल पहले वो बैडमिंटन की दैट चैंपियन थी, दैट लेडी बिफोर संधू केम इन, Saina Nehwal. Saina Nehwal. So she met me, and I don't know if she interviewed me or I interviewed her. I don't know, can't remember. तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा बेटा आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह? बोले सब मेरे फ्रेंड कोई है ही नहीं. My friend is only my parents and my coach. He said I don't know anybody. दिन में 6 से लेके 8 घंटे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, 6 to 8 hours a day. और उसके बाद after practice she says I'm so exhausted. You don't have time. I can't even lift myself. तो मैं सो जाती हूँ जाके. She said this is it. And what about friends? Forget boyfriends. Friends? Where are friends? So look at what she did, and it made so much sense to me कि कितना लोग स्ट्रगल करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं होता ये. True. लेकिन आज की जो जनता है, लोगों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट है साहब. आप भी 50 आदमी से बात करेंगे, probably they don't realize what you did to get where you are. वो कहते हैं साहब you must be lucky, must be at the right place at the right time, must be at the right place at the right time. वो जाएंगे पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, ये बता दीजिए. मैं आज ही पढ़ रहा था on this cricket match that India has lost in. कहता था कि साहब ज्योतिषियों ने सब चेक किया हुआ था, हवन बहुत हो रहे थे, वास्तु के हिसाब से पिच बनी थी, वास्तु के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से बोले इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा. What happened? You know something? ये सब मैंने आज तक मुझे बताइए, ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, दुनिया में कभी आज तक सुना है किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने लॉटरी जीती है? अरे यार सारे नंबर निकालते हो, बैठ के निकालो ना, लॉटरी ले लो आप. आज तक किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने कभी लॉटरी जीती है आज तक? मैं एक आदमी को देखा कि वो उंगली में
एक एक उंगली में दो दो अंगूठी पहनी हुई थी। Yeah. मैंने कहा क्यों यार, ये क्यों पहना हुआ है? बोले इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसको शांत करने के लिए, इसको शांत करने के लिए। मैं शांत हो गए। मैं कहा 10 नीचे भी पहनी है क्या? क्या हो रहा है? लुक एट दिस। देखिए, जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है। और जब नीचे आती है ना, जिसने जिंदगी में आगे बढ़ना होता है वो एनालाइज करता है, अपने आप से सवाल करता है कि अगर ऐसे हालात दोबारा से आ जाएं तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे पहले किया था? अगर आंसर इज यस, मींस कुछ नहीं सीखे। Yeah, that's basically learning from your Learning from the mistake. experiences. And then he says, I learned from here. Next time I won't make the mistake. लेकिन जिसने सीखना नहीं है ना, वो भाग्यवादी करता है। कहता है कि साहब, मेरा भाग्य मेरे को, मेरे नक्षत्र जो है मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए ऐसा हो गया। सीखेगा कुछ नहीं साहब उससे। So basically आप blame कर रहे हो किसी ना किसी चीज को instead of taking the जिम्मेवारी नहीं responsibility. लेना चाहते। और मजे की बात देखो, one of the biggest damage done to India has been done by our media. कभी भी आप टीवी खोल के देखो क्या दिखता है? हॉरोस्कोप, स्वामी जी बैठा है, गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, और सब बैठे हैं वहां पर। पूछता है जन्म तिथि बोलो, नाम बोलो, कहां से बोल रहे हो, बोलो कितने टाइम जन्म हुआ, बोलो मालूम नहीं। गुरु जी कोई बात नहीं। उसके बाद एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो टिक 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 करके कहता है उसको, सोम मंगल में बैठ गया, मंगल बुध में बैठ गया, बुध बृहस्पति में बैठ गया, फलाना हो गया। फिर मंगलिक 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 मंगलिक, तो मंगलिक हो गए। So basically- नहीं, सुनो सुनो, तो आगे क्या है बेसिक मंगलिक। तो बोले मंगलिक क्या हो जाएगा? बोले इसको उतारने के लिए पीपल के पेड़ से शादी कर लो, केले के पेड़ से शादी कर लो, यही कुछ करवा रहे हैं। फिर बोले शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब वो घबरा रहा है कि शनि चढ़ गया, तो बोले शनि को उतारने का उपाय क्या है? बोले काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो, सब यही काले काले खोज रहे हैं सब। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो ना यार। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। नेहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि शनि परमानेंटली इंडिया में क्यों रहता है? कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, कभी न्यूजीलैंड नहीं जाता, कभी इंग्लैंड नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, यहीं बैठा है परमानेंटली। देखिए मैं क्यों बात कह रहा हूं ये। अगर आप जीवनी पढ़ें स्वामी विवेकानंद की, दयानंद की, गुरु नानक की, उन्होंने कभी इन चीजों में यकीन नहीं किया, बल्कि इनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, विश्वास इंसान को ताकत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। दे विल नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप दूर क्यों जाते हो? गुरु नानक का जीवनी पढ़ो। सिखों में जानते हो कोई पत्री नहीं मिलाते आज तक, सिखों में कोई मंगलिक नहीं होता। जानते हो सिखों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता शादी का। हर शादी सिखों की कब होती है? संडे को। अच्छा। एवरी वेडिंग फॉर अ सिख इज डन ऑन संडे। कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे कर देते हैं। सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं। ये आप एक और चीज सुनो। आप जानते हो सिखों में जात नहीं होती। सिखों में जात नहीं होती है। हर सिख का लास्ट नेम क्या है? सिंह। हर सिख औरत का नाम क्या है? कौर। कौर। एंड आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जी का जन्मदिन है। सिक्खी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिक्खी 3 सिद्धांतों पर टिकी हुई है। दे आर केयरिंग पीपल, शेयरिंग पीपल, डेयरिंग पीपल। केयरिंग परवाह करते हैं, शेयरिंग बांट के खाते हैं और बांटना, और डेयरिंग पीपल उनको ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने की ताकत भी है, तलवार भी उठा लेते हैं। ठीक हुआ। अब सिक्खी जो टिकी है 3 सिद्धांतों पे, नाम जप, वंड छक, किरत कर। नाम जप का मतलब है एक ही परमात्मा है, निरंकारी, फॉर्मलेस गॉड। ओके। वंड छक का मतलब होता है बांट के खाना, लंगर। लंगर का यही नहीं है कि दुखिए किसी अंडर प्रिविलेज्ड के पास शेयर इट विद देम। ये आज का नहीं, 500 साल पुराना लंगर है। और किरत कर, आज तक दुनिया में चाहे जो भी उम्र आपकी है, आज तक कभी आपने किसी सरदार को भीख मांगते देखा है? दुनिया में एनीवेयर इन द वर्ल्ड? नेवर। किरत कर का मतलब है ईमानदारी से मेहनत किया हुआ काम करने से कमाना। दैट इज ऑनरेबल। आज मेहनत करना ये इज खत्म वेरी, करने दीजिए।
सी मेहनत से किया काम इज इंपॉर्टेंट, ईमानदारी से किया हुआ। आप देखें कोई सरदार भीख नहीं मांगेगा। जिसके हाथ कटे होंगे ना, पांव भी कटे होंगे, वो भी भीख नहीं मांगेगा। आपके जूता साफ कर देगा, नाली साफ कर देगा, बाथरूम साफ कर देगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। ये अहंकार नहीं है, नम्रता है। तो दिस इज डिग्निटी ऑफ लेबर एंड वर्क। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर हम लोगों ने सिक्खी के सिद्धांत अपनाए होते बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के, ये देश कहां का कहां पहुंच जाता। हम लोग बंटवारे में बैठे हुए हैं, जाति जाति में लड़े बैठे पड़े हैं यहां पर। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, व्हिच इज शेमफुल। True. We need to understand and learn. And I take a big objection to this. वो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अरे सिख से बड़ा हिंदू नहीं है। This is a wrong statement. हिंदू, मुस्लिम, ईसाई is okay. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई is not okay. सिख is a हिंदू। हमारी आधी फैमिली केस रखती है, आधी नहीं रखती है। क्या हो गया? What are we talking about? This is totally a rotten thing that has come into our society. Yes. And brought in here by our politician. So They are doing disservice to the country. do you think this is because the people are mentally not capable of handling stress? Is that so? They're too fearful of failure, or they're too fearful of, in general, उनको stress लेने में दिक्कत है, hard work करने में दिक्कत है, उनको responsibility लेने में दिक्कत है। बिल्कुल आपने कहा ठीक। This is the reason Responsibility behind all लेने this. में दिक्कत है। मैं आपको बताता हूं, एक बारी मैं एयरपोर्ट जा रहा था, तो अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा क्या होगा? बोले आप शगुन है, गाड़ी रोक देता हूँ। मैं कहा कब तक रोकोगे? कहता जब तक कोई दूसरा ना निकल जाए। तो मैंने कहा यार मेरी फ्लाइट मिस होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उसको एक बात पूछी कि मैंने कहा भैया एक बात बताओ कि मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली निकल चुकी होती और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता तो इन दैट केस आप ही की गाड़ी पहली होती, तो फिर क्या होता? सब ध्यान से सुनो। वो ड्राइवर है, मेरे को समझा रहा है, कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। क्या बात है? मेरे को समझा रहा है, कहता है बिल्ली की पावर कम हो जाती है। हाँ। जानते हो ये अंधविश्वास के चलते एंड एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन के चलते एक आर्टिकल निकला था in January 2018 in India Today. Natural childbirth has gone down by 80%. 80% in some parts of India, खास तौर पे साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास। जानते हो क्यों? गो चेक आउट, गूगल करके देख लीजिए। 80% of childbirth in South India today is done through C-section operation. Why? Because some astrologer said this is good time to pull out the kid. यही हो रहा है। और आज की तारीख में सैडली टू से मोस्ट पीपल जो टेम्पल्स जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, दे गो देयर मोर आउट ऑफ फियर देन आउट ऑफ फेथ। वो डर के मारे जाते हैं साहब, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये एक मेंटल कैपेबिलिटी का और नहीं, सबसे बड़ी चीज, हाँ जी, आप साधु महात्मा गुरुजी स्वामी जी को देखिए और लोग जा रहे हैं अंधविश्वास, उनके पांव पकड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं। अरे उसको जेल में होना चाहिए भाई। और एक बाबा के यहाँ भीड़ लगी हुई थी, पूछता है जलेबी खाई थी? नहीं खाई थी। अरे गोलगप्पे खाए थे? नहीं खाए थे। चटनी खाई थी? नहीं खाई थी। ये हाल हो रहा है साहब वहां पर, और बैठ के लोग पैसे भी दे रहे हैं साहब, बेवकूफ बन रहे हैं। ये I think it's a mental illness, to be honest. I don't Totally. believe in this. I agree with you. Absolutely. I mean, if you have to pray, then why go through somebody? So I think these are people hiding behind fear. Correct. And they don't want to acknowledge that or go, out of it. So ये उसी का है, and I think it'll be a big conversation if we get into this about how and why people should not or should believe into babas or sadhus or whatever. I think it's just about कैसे वो अपने आप को छुपाते हैं इस fear से. I mean, just to take it to another this thing, मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि as you mentioned about mothers, I'm taking it to another thing where I'm a mother of 2. I have twins, and एक perspective होता है कि when एक तो इंडिया का ही पर्सपेक्टिव है, और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप एज अ एथलीट और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जब आपकी शादी होती है, देन देयर इज दिस थिंग वेयर आप नाउ दैट्स द एंड ऑफ योर करियर, राइट? एंड देन
उसके बाद अगर आपको बच्चे होते हैं then तो it's definite full stop. And just to tell you कि मैंने मेरा C-section था because of reasons, and I played 7 months postpartum, and I played a sport which is a full contact sport, जिसमें it's all about tackling, it's all about falling down, getting up, etc. So ये एक perspective था जो people used to keep telling me कि अरे अब तू क्या what are you going to play, क्या खेलेगी, अब तो खत्म now, stop working. I stopped working 2 days before going into the hospital to deliver my children. So and working till 48 hours, my God. Yes. And I started working again 15 days post my operation. And I started training 15 days after. My God. You're So, a strong lady. Thank you. You are a great role model. अब लोगों को तो सीखना चाहिए आपसे. मैं तो बल्कि आपकी बात सुन के इतना मोटिवेट खुद हो रहा हूँ कि look at how you came back and look at how you did. Yeah. It's amazing. Thank you. Absolutely. I'm trying. I mean, although it is very difficult. It is difficult. And it doesn't come without the support of your family. To be honest, they have been the pillars behind me going forward, right? So, but ये जो perspective है कि एक point बाद आप कुछ कर नहीं पाते, for women especially. So जैसे मैंने आपको पूछा कि ये आपका क्या perspective है about women can't work or women can't play after their postpartum or pregnancy or उनके बच्चे हो जाने के बाद. What's your take on that? देखिए ऐसा है. Today I do hear a lot of women's lib and this. You kind of hear all kinds of stuff, and I respect. In fact, personally, I respect the gender part. I look at it as that there are equal rights. I have 2 daughters of my own and 2 grandsons. But देखिए कोई चीजें परमात्मा ने कुदरत से बनाई हैं, which you and I can't change. No matter what we try to do in terms of, see, only women can have children, babies can come out only out of women. आदमी के बच्चे बाद में बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये कुदरत ने बनाया, इसको क्या बहस करोगे क्या इससे? There's no answer to it, there's no argument to it. So the point is that there are certain things that nature कुदरत ने बनाई हैं उसको, and we have to respect that to a point. And but as you rightly said कि बहुत बारी लोग कहते हैं कि that is the end of the career. That's not it. I don't agree with I'm that. only saying it because ये जो perspective है लोगों का, जी. right? We are not questioning what abilities a woman has and a man doesn't. ये वो नहीं है. It's about कि ये perspective सिर्फ women पे क्यों apply किया जाता है. I believe that मैं इस stereotype को break कर चुकी हूँ, right? In the way कि मैं 7 months postpartum I played a sport which is a full contact sport, जैसे rugby. मैंने खेला है, I played it at a national level. उसके बाद at 11 months postpartum I played the national games. वो जो training phase भी होता है, and to be honest मैं उस breakdown से भी गुजर चुकी हूँ, right? जो I wouldn't call it a postpartum depression phase, but एक ये phase होता है जो when you start questioning आपकी abilities. जो मेरी बॉडी, जो मेरे एबिलिटीज, जो मेरी स्ट्रेंथ, जो मेरे थॉट प्रोसेस प्रेगनेंसी के पहले था और जो प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, राइट? उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर आफ्टर गिविंग बर्थ टू 2 kids, it was a complete question mark for and myself. Also C-section. Yes, C-section, yes. Yeah. तो वो एक मेंटल बैरियर भी हो चुका था कि अब क्या, आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या मैं कर पाऊंगी, और क्या मैं उस लेवल पे अभी खेल सकती हूँ, क्या मेरी बॉडी उस लेवल तक साथ देगी या नहीं देगी. बट आई रियलाइज्ड कि ये बस दिमाग में है. अगर मैं मेहनत करूँ और अगर मैं मे बी ब्रेक दैट थॉट प्रोसेस, जो मेरी साइकोलॉजी है उसको कैसे ना कैसे ओवरकम करूँ, और वो कैसे ओवरकम करूँ इज समथिंग दैट आई ऑल्सो वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन. इट्स जस्ट कि I used to just show up every day, show up for myself, leaving behind कि I have given birth, I have 2 kids, I have to provide for them, I have to take care of everything, but I also have to show up for myself. Right. And that is something that I
I feel in today's generation people are lacking. Right. To show up for yourself. हम इतने सारे चीज़ों में फंस जाते हैं और हम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके हम सोचते हैं कि यार ये होगा, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अपना बाद में कर लूँगा. Especially women. We care for the family, we care for our kids, we care for our work, but we don't care about ourselves. So what is your perspective on this, and how should people, or women especially, overcome this phase? Neha, I wouldn't make it a woman issue to begin with. Yeah. Number one. Number two, जो आपकी जिस तरीके से commitment है और determination है, I mean, it shows through how you did it and what you did. और दुनिया में आज तक कोई भी अचीवर हुआ है इस कमिटमेंट के बिना कोई नहीं हुआ है. तो आज कहते हो कि आज की जनरेशन, मैं आज की जनरेशन के बारे में ये कहता हूँ. लेट मी शेयर विद एन एग्जांपल ऑफ ब्रूस ली. लेजेंड था मार्शल आर्ट में. क्या आपको मालूम है कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी? 1 इंच छोटी थी. नाउ 1 mm, 2 mm, 3 mm अगर फर्क हो जाए तो आदमी डिसअलाइन हो जाता है. और ब्रूस ली की आई साइट वॉज -10. ब्रूस ली कुड नॉट सी हिज अपोनेंट विदाउट लेंसेज. लेकिन ब्रूस ली रोजाना he used to practice 5,000 punches per day. 5,000 punches per day. क्या ये बिना कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के हो सकता है? Is it a male or a female issue? No. It is neither a male issue nor a female issue. Yes, what you said is after childbirth and all that stuff. Yes, given regardless, but the issue remains the same. It is not a male or a female issue. It's about commitment. That guy also had one leg shorter. His eyesight was -10. How many people can do it? How many people can do it? Now, he didn't deliver babies, but he had a major problem. But how many people can do it? So my point is, it is not a male-female issue. It is a commitment issue. It is a determination issue. It is how committed we are to do it. कोई चीज जिंदगी में बिना कमिटमेंट के, बिना स्ट्रगल के एंड बिना सैक्रिफाइस के नहीं होती. देखिए, आप कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं टू रीच दिस लेवल. The word is sacrifice. Yeah. You could go to watch movies, you can go to enjoy somewhere, you can go to parties, you can do a million things, but you didn't. You could have late nights and you couldn't go for practice next day morning. What do? अब मैं भी जब प्रोग्राम करता हूं अपने, I'm 74 and I do programs and I stand 12 hours a day. 12 hours a day. I don't sit. I would like to see some 35-year-old standing 12 hours every day. And after in the evening, जब मैं शाम को प्रोग्राम खत्म करता हूं, मेरी लातें एकदम अकड़ जाती हैं. They're stiff. Yeah. But then I do it. So my point I'm trying to make is, it is your commitment what makes you do it. It is how strongly you feel something. आपके अंदर में कितनी conviction है. बहुत बारी लोग कहते हैं, साहब मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूं, मैंने आपकी किताब भी पढ़ी हुई है, मेरी सफल होने की बहुत इच्छा है लेकिन हो नहीं पा रहा हूं. सफल होने की इच्छा लेकिन हो नहीं पा रहा हूं. तो पूछते हैं मेरे से कि साहब क्या वजह है कि मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं? इच्छा है. मैंने कहा यही प्रॉब्लम है कि तेरी इच्छा है. दैट्स अ प्रॉब्लम. तेरा इरादा नहीं है. इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है. इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं होता. True. जैसे बहुत सारे आइडियाज होते हैं पर उनको और जब भी जिंदगी में दबाव पड़ता है, इच्छा कमजोर हो जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर टॉकिंग हियर. एंड आज की जनरेशन जो खास तौर पे इनको नए नए लफ्ज सीखे हुए हैं इन लोगों ने. डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट. डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट. यू सी, दैट गाय माइकल फेल्प्स ट्रेन्ड 10 years. 10,000 hours. Michael Phelps did it. Same thing, Bruce Lee did it. You did it. It doesn't happen. Folks, there is no substitute to hard work. Absolutely true. There is no substitute. अगर आप एक न्यूरोसर्जन बन पाते हैं, एक वीकेंड का कोर्स लेके, सैटरडे संडे का कोर्स लेके न्यूरोसर्जन बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते ना. अगर ऐसे बन जाते तो सड़क पे छाबड़ियां लगा के सिर काटते लोगों के डॉक्टर. It doesn't happen like that. True. You can't do it. Yeah. You have to put in the effort. There is no substitute to hard work. और 2000 साल पहले किसी ने सोक्रेटिस से पूछा था कि सफलता का राज क्या है.
तो कहता है कल सुबह मिलना मेरे को नदी के पास, मैं बताऊंगा। मिले तो उसने लड़के को बोला कि बेटा पानी की तरफ चलो, तो पानी की तरफ गया वो। जब पानी की तरफ गया तो सोक्रेटिस ने एकदम सिर से उसको पकड़ के बाल से डुबो दिया, डुबकी दे दी। तो बच्चा बाहर छूटना चाहता था, लेकिन सोक्रेटिस ने उसको वहीं अंदर रखा। जब वो बच्चा नीला पड़ने लगा तो सोक्रेटिस ने एकदम उसको बाहर निकाला। तो सोक्रेटिस ने पूछा, और जैसे उसको बच्चे को बाहर निकाला तो बच्चे ने जोर से एक सांस ली। तो सोक्रेटिस ने पूछा कि बेटा जब तुम पानी के अंदर थे, तेरे को कौन सी ऐसी चीज चाहिए थी दुनिया में जिसके बिना तू रह नहीं सकता था? कहता मुझे सांस चाहिए थी। कहता बेटा सीक्रेट सफलता का कोई राज नहीं है। जब तुझे सफलता वैसे चाहिए थी जैसे तुझे सांस चाहिए थी पानी में, तुझे जिंदगी में कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉट डिजायर, इट्स कॉल्ड बर्निंग डिजायर। बर्निंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं फायर इन द बेली, और इसको स्पोर्ट्स कम्युनिटी में कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। ट्रू, एब्सोल्युटली। यू हैव टू हैव द किलर इंस्टिंक्ट। लाइक यू सेड, आप सो नहीं पाते जब तक आप वो अचीव नहीं कर पाते। दैट्स राइट। तो इसका सिर्फ जवाब यही है कि आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और जिसके अंदर कमिटमेंट नहीं होती है। देखिए हर एक जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में समस्या आती है। आपके भी आई थी, मुझे भी आई थी, सबके आई थी। लेकिन जिसकी कमिटमेंट नहीं होती ना, पहली प्रॉब्लम होती है वो भाग जाता है। देयर आर नो वे। या ट्रू। पर जिसकी कमिटमेंट होती है ना, दे ओवरकम द प्रॉब्लम एंड देन गो ऑन एंड अगेन, गो ऑन एंड गो ऑन। इसी रास्ता बदल देते हैं, लक्ष्य नहीं बदलते हैं। रास्ता बदल देते हैं, लक्ष्य नहीं So बदलते। can I tell you one example of Detour. myself? बताइए। This is back in I think 2015 और 2016 के आसपास। हमारा एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ रहा था and I was training for it. जैसे प्री सीजन ट्रेनिंग होता है for athletes, there's प्री सीजन and there's ऑन सीजन वाला ट्रेनिंग। तो मैं मेरा ऑफ सीजन ट्रेनिंग कर रही थी। इन वन ऑफ माई ट्रेनिंग सेशंस मेरे बैक में इंजरी हो गई। ओके, आई वेंट टू द डॉक्टर। द डॉक्टर सेड कि यू नो नेहा आप मत खेलो। ही सेड दैट। आई वेंट टू अनदर डॉक्टर। उसने भी ये बोला कि नेहा इफ यू वांट टू प्ले लॉन्ग टर्म देन यू अवॉइड दिस अपकमिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट। एंड दिस इज वेयर ये टूर्नामेंट में जाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, बिकॉज मेरे को वो फ्लो ब्रेक नहीं करना था अपने आप के लिए, वेयर आई एम यू नो मैं खेल रही हूँ और फिर वो एक यू नो ऐसे बोला जाता है कि एथलीट्स को इंजरी ही रोक सकती है। यू नो देयर इज नथिंग एल्स दैट एन एथलीट स्टॉप्स फ्रॉम एक्सेप्ट एन इंजरी। तो वो मेरे को मेरे दिमाग में नहीं डालना था। सो देन आई वेंट फॉर ट्रेनिंग और वो इंजरी थोड़ी और सीवियर हो गई। Alright, there was a point where I couldn't even lift a pencil out of the floor. I couldn't bend, I couldn't move my hand, I couldn't do anything. It was like I had become a robot. फिर luckily I met one friend who was a physio. She helped me. मैंने उसको बोला, look, मेरे को जनवरी में ये टूर्नामेंट खेलना है, खेलना ही खेलना है. There is no alternative, and I can't give up, and I can't sit at home. मैंने मेरा physiotherapy करा. There used to be a time I used to go every day 20 kilometers. You know, on the bike, sitting in that robot position, and there used to be 20-30 needles in me. ये जो needle therapy होती है, it's a form of rehab. और वो continuously acupuncture, yes, I did that continuously for 2 weeks. फिर मैं गई, मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग स्टार्ट किया, अपना रिहेबिलिटेशन किया. You know, the first tournament I went for before playing the national tournament, मेरे दिमाग में बहुत fear था. जैसे यू नो दैट अगेन इफ आई गेट स्टक देन व्हाट, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसे हुआ था कि आई कुडंट इवन मूव, एंड एक टैकल हो जाता रग्बी का एंड यू नो पॉसिबिलिटी दैट आई वुड बी अगेन आउट. फिर उससे गेटिंग बैक वुड हैव बीन द बिगेस्ट स्ट्रगल. लकीली माई मदर वॉज माई ट्रेनर एट दैट टाइम एंड शी वॉज लाइक कोई बात नहीं, यू ट्रेन एंड हो जाएगा. यू नो दैट वॉज दैट पॉजिटिव थिंग दैट आई ओनली नीडेड. So she and the physio, they were like my 2 positive points कि सब कुछ negative दिख रहा है. The top doctors have said no, don't play, but I have to play and this is what it was. Whatever it took, I did. फिर I went, luckily उससे I did get a tackle and I did try, like वो हुआ था कि वो दिमाग में आया था कि हो जाएगा ऐसे फिर से.
But I kept playing. I went for the national camp. उसमें training हुआ. Again, I used to have a painkiller every day. Every day, the camp was for 1 month. I used to have a painkiller every day, and I used to show up every day, 3 times a session, 3 sessions a day, which is 2 hours, जैसे 8 घंटे, around 7-8 घंटे का training होगा. And I used to show up. End में, you know, it used to be, my body used to be so stiff कि कुछ भी नहीं कर पाती, बस जाके सोना है, खाना है और सोना है. There's nothing else I could even think about. But वो था कि I had to play, you know, the tournament. फिर the tournament का selection day आया, जिसमें, you know, एक pool of players में से top players get selected and they go to represent India. मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए. I had no idea कि क्या होगा, मैं select हो भी पाऊंगी या नहीं, because injury था and I've just tried to come over it. That day, I got announced as the captain of the Indian team. Oh. Okay, and मैं रोने लग गई. So the coach is like, why are you crying? You know, you should be happy. Right. And I was like, I don't know. You know, I don't know what is going to happen because I couldn't tell him anything. You know, coaches, it was just a very, you know, it was a feeling where I have goosebumps, I have tears in my eyes, and I was like, I don't know. And thank you for the opportunity. फिर वो टूर्नामेंट हम गए, लाओस में हमने खेला, एंड वी केम सेकंड इन एशिया. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन our prime minister congratulated, I mean, he congratulated me in one of his shows and things like that. So it was all about, for me, मैंने वो सीखा कि, you know, no matter how much life puts you down, जितना भी आप गिरो, आपके ऊपर है आप कितने बार उठते हो, right? And that was the biggest learning, and that is something even today I keep taking and thinking कि कुछ भी हो जाए, you know, no matter how much I fall, no matter how many times I get tackled by life or any situation, बस ये है कि मेरे को उठना है, उठ के जो मेरे को चाहिए वो करना है. Nothing is there that is going to stop me from doing what I am doing or what I want to do. So this is just something that I wanted to share with you. Amazing, amazing. Thank you. आप जैसे लोग जो है ना, आपकी जो कहानी है is no different to Bruce Lee. You are at the category of Bruce Lee. You are also at the category of Michael Phelps. You see, देखिए, उन सबको समस्या आई थी. किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सफलता की परिभाषा क्या होती है. सफलता उससे नहीं मापी जाती कि दुनिया में आप कितने ऊपर गए, उससे मापी जाती है एक बात ये कि कितनी बारी गिर के उठे. That is called success. Yes. सफलता उससे नहीं मापी जाती कि आप दूसरों के मुकाबले कैसा खेल रहे हो. सफलता उससे मापी जाती है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा खेल रहे हो. Athletes compete against themselves. Yes, true. They better their own record. They don't compete against others. तो यही चीज तो आपने जो करके दिखाई है, that is an example by itself. And go check out all success stories are stories of great failures. Every success story is a story of great failure. True. Michael Jordan, that guy, the basketball player. Yeah, basketball. Same thing. You look at anybody for that matter. So even yourself. So I mean, it's I mean, right your there. story is not, like I said in the beginning, it's not different from mine, where it's all about how many times we fell and how many times we rose from that. See, आज की तारीख में हम लोग की तकरीबन close to 10 million copies of books have been sold Wow. globally. But जब मैंने पहली किताब लिखी थी You Can Win, और मैं पब्लिश कराने जा रहा था, तो कोई पब्लिशर मेरी किताब पब्लिश नहीं करता था. 100 publishers rejected me. 100 publishers. और एक अखबार में निकला था, ये किताब मत खरीदना. Oh. Wasting your money. शिव खेरा ने कोई नई चीज कुछ नहीं लिखा है. तो दिस इज हाउ इट इज. तो तब से सीखे कि साहब आप अच्छा काम करोगे, निंदा करने वाले आपकी निंदा करेंगे. बुरा करोगे, निंदा करने वाले फिर भी निंदा करेंगे. अच्छा काम करते जाओ, निंदा की चिंता ना करो, आगे बढ़ते जाओ. That's all. That's the answer. Yeah. It's also, they say that, you know, if people are talking about you, that means you're doing something good. Yeah. Negative or positive, right? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि झूठी तारीफ सुन के बर्बाद होना पसंद करेंगे बजाय सच्ची निंदा से लाभ उठाने के. देखो, आप देखिए, आप एथलीट हो, हर एथलीट का एक कोच होता है. कोच के बिना एथलीट कभी नहीं कर सकता. तो अगर एथलीट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो क्या अच्छा कोच चुप रहेगा? नेवर. ही विल स्पीक अप. Yes. ही विल क्रिटिसाइज, निंदा करेगा.
You see, he will criticize in a constructive manner. और constructive criticism किसे कहते हैं? The purpose behind it is, the idea is to correct and not to punish. Yes, आप that's right. उसको सुधारना चाहते हो बजाय सजा देने के. So that is the whole idea behind a good coach. It's a caring attitude, and that's life is all about. Absolutely. It's all about learning from your mistakes. It's all about learning from your failures and how much you can rise or just implement the learnings in your life. लेकिन नेहा, I would like to just add to one thing. Yes, sir. कि wise people, समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि हम लोग की जिंदगियां इतनी लंबी नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखें. Yes. Their lives are not long enough. Absolutely. लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो कभी सीखते ही नहीं, अपनी गलतियां दोहराते चले जाते हैं. And that's what it's all about. Yeah, true. Absolutely well said, sir. So, एक और question and we can end the conversation where आपका क्या take है on, so a lot of people travel to other countries Right. for, you know, finding employment or finding opportunities basically. Right. What do you think about कि उन्होंने अपने country को develop करने के लिए और just they should take the opportunity of going to another new place and work, or they should just take that opportunity of working in their own respective country, and you know how should that be for for general people? What do you think about it? But I don't have a right or wrong answer to this, especially खास तौर पे क्योंकि ये जो सवाल आपने पूछा है मेरे पे लागू होता है. अच्छा. जब हमारी माइंड नेशनलाइज हो गई तो मैंने 2-3 काम करने की कोशिश की बिना पैसे के, सब में फेल हो गया मैं. तब मैं यहाँ इंडिया से चला गया यहाँ से. तो मेरे को गए अभी इट इज मोर देन 45 years now, 46 years, एंड आई स्टार्टेड लाइफ विद अ बकेट इन माय हैंड. लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि अगर अमेरिका ना गया होता और आज मैं जिस तरीके से आज अपने देश को आके सर्विस कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, एंड व्हाट आई कुड नेवर हैव डन इट if I had not gone from here. And if I look at it, कि आज की तारीख में खास तौर पे मैं सिर्फ इंडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऐसे देश हैं जहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, whether it is in Africa, नेपाल, इंडिया, बहुत जगह से बाहर जा रहे हैं, और खास तौर पे भ्रष्ट देशों के साथ. This is more so applicable in countries जहाँ पे करप्शन बहुत चल रही है. जहां पे करप्शन होती है, जिस आदमी के पास रिसोर्स नहीं है, ही इज हैंडीकैप्ड. ही इज हैंडीकैप्ड, दैट्स अ फैक्ट. इसी अगर आपके पास पैसा नहीं है, रसूख नहीं है, आपके कॉन्टेक्स्ट नहीं है, डॉग हैज अ बेटर लाइफ, विच इज सैड बट दैट इज ट्रू. एंड दैट इज व्हाई बहुत से लोग चले जाते हैं फॉर ए बेटर इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ. इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर मेहनत नहीं करते वो लोग, और वहां पर ये नहीं है कि वहां पर बहुत आसान है, लेकिन वहां पर ये जरूर है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं है, इस तरीके से आपकी टांग खींची नहीं जाती है, आपको उधेड़ नहीं जाते हैं. अगर आपके जान पहचान नहीं है तो आपको 2 मिनट में अंदर उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है. See, those things, that is why many people leave countries which are corrupt. And that's a fact. In fact, there was a survey done, I think it was done by Hindustan Times if I'm not mistaken, and they said 62% of youth want to leave India. Many people, same thing in other countries, I'm sure. But the point is, why do you want to live there? It's quality of life. Don't get me wrong. You see, जहाँ वहाँ पर पैसे कमा लेते हैं, कमा के वापस आना चाहते हैं फिर. Then they're coming back now also. There are people coming back. Yeah. And there are, once they're qualified, and they say आज उनको वहाँ पर people are required here, people are offering all kinds of money and they come back. Yeah. So it's all about quality of life. But they have secured themselves. Yeah. किसी ने एक बात कही है कि खाली पेट कोई असूल सिद्धांत नहीं होते. There are no principles in empty stomach. अरे खाली पेट क्या सिद्धांत सिखाओगे? ईमानदारी सिखाओगे, सच्चाई सिखाओगे? कुछ नहीं है. ना देशभक्ति सिखाओगे, देशभक्ति भी नहीं है. खाली पेट कुछ भी नहीं है. That's why many people, when जो परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उनको मौका मिलता है, निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये स्थिति नहीं है. At least
in the Western countries. Yeah. Australia है, America है, Canada है. हाँ, कई जगह पे things have changed quite a bit since जब हम गए थे. आज में बहुत फर्क है. आज मेरे को कहे वहाँ चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा. I have an option. Yeah, you have an option. It's all about having that option, So- right? Yeah. So my answer is that I personally feel that many people who are coming back to India, well, why did they go back? Go away. They went because they couldn't see that. They could see more opportunity there. And they made a success out of it, and they're coming back to serve their own country back here again. Yeah. So is it wrong? I don't think so. And some people have settled, they don't come back at all also. Yeah. And that's fine too. But again, I personally feel that this is a responsibility of the government and the people. और government क्या बोलती है जानते हो? Government को elect करने वाले कौन होते हैं? लोग होते हैं. लेकिन democracy जहाँ पर democracy ही गलत है, सारी rigged है, बेईमानी से डेमोक्रेसी होती है, तो वहां पर आप आम आदमी क्या करेगा? उसकी वोट की कीमत क्या है? अगर सारे कैंडिडेट ही क्रिमिनल्स हैं और करप्ट हैं, तो जाके वोट किसको दोगे? लोग वोट नहीं करते. तो कहते हैं लेकिन आपने तो जिताया थोड़ी है भाई, ये तो सब रिग्ड है सारा. That is not democracy. Yeah. All right, sir. Thank you so much. Any message that you'd want to conclude with to give the मैं सिर्फ एक ही everybody. संदेश दूंगा, खास तौर पे people ask me with the youth today कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है. तो मैं कहता हूँ कि साहब जैसा मौका आज है, ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं हुआ सफल होने के लिए. जितना आसान है आज सफल होना, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ. right. तो किसी ने मेरे से पूछा कि ऐसे कैसे है भाई? तो मैंने पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप कितने लोगों को जानते हो जो सड़क पे चल रहे हैं आज, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? आंसर इज हार्डली एनी. Yeah. ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा बड़ा वर्ग है वो उतना ही काम करते हैं जिससे उसकी जान छूट जाए, और एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है. Yeah. तो मैंने कहा भैया अगर आप उस छोटे वर्ग में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या प्रोफेशन है, आपका कंपटीशन है कहाँ. आज आपको अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा अटर्नी नहीं मिलता, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता. सवाल ये है, कोई अच्छा कुछ नहीं मिलता. सवाल ये है, आर यू विलिंग टू डू अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट यू गेट पेड फॉर? आप एक चीज देखें, जो लोग सफल हुए हैं जिंदगी में और उन्होंने सफलता को कायम रखा है. सी ऊपर चढ़ना एक चीज होती है और फिर ऊपर में बने रहना Yes. दूसरी चीज होती है. Yes. और अपनी गुडविल बनाना, गुडविल होती है एक, आई वोंट यू कॉल इट इन हिंदी, बट इट इज योर बेसिकली इट्स अ गुडविल. जो लोग सफल हुए हैं और अपने आप को कायम रखा है वहां पे और अपनी गुडविल बनाई है उन लोगों ने, वो सभी एक ही सिद्धांत से जिए हैं. वो ये है कि मुझे जो मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, और जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने समाज को और देश को. अगर इस सिद्धांत से आप जीते हो, आप मुझे बताइए कंपटीशन है कहाँ? Nothing. आप ही बन जाते हो कंपटीशन. यू हैव नो कंपटीशन. Yeah. True. Thank you, sir. Really wise words to say. And thank you. Thank I you. think we can conclude with this. It was an absolute pleasure. And just thank you so much. It was such an honor. Grateful, man. Thank you. Thank you.